Assalamu alaikum, dear students and friends. I hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I'm here after a quite a long time. And today I'm going to discuss two chapters from the Tulip series of class 9. And the chapter is The Tempest. And it's written by a well-known writer, well-known poet, and William Shakespeare is also a playwright. That means a person who writes play. And William Shakespeare is England's national poet. So let's discuss about the term tempest. What tempest is? Tempest का मतलब होता है storm, तूफान. ठीक है. सो आज हमें इसी स्टोरी के बारे में पढ़ना है. Tempest is divided in two parts, and here in this video I am going to discuss both the parts. But first of all, let's discuss about the part 1. Okay. The Tempest is the last play written by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर का ये लास्ट प्ले है जो कि उन्होंने लिखा है. ठीक है. उसके इस स्टोरी के लिखने के बाद, इस प्ले के लिखने के बाद उनकी डेथ हो जाती है इन द ईयर 1616 एंड ही वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564. So he was alive for 52 years. Okay. So William Shakespeare जो है उनकी डेथ हो गई at the age of 52. So this story is all about repentance, means regret. पहले कुछ लोगों का झगड़ा अगर होता है, उसके बाद रिग्रेट होता है और उसके बाद रीयूनियन होता है. तो बेसिकली टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. It's a beautiful play containing beautiful words, wisdom and thought and the themes of repentance and reconciliation. There is a storm, तूफान आता है. ठीक है. शिप की डिस्ट्रक्शन होती है. And it's the beautiful play, love story actually, of Miranda and Ferdinand. Okay, let's read the text. On a lonely island in the sea, there once lived 3 people. A wise old man, Prosperio, his beautiful young daughter, Miranda, and their servant, Caliban. कहते एक अकेले एक आइलैंड पे 3 लोग रहते थे. सी में एक आइलैंड था, वहाँ पर एक बारी 3 लोग रहते थे. एक चालाक बूढ़ा आदमी जिसका नाम प्रॉस्पेरियो था, उसकी बहुत ही खूबसूरत बेटी मिरांडा और उनका एक सर्वेंट जिसका नाम कैलिबन था. Father and daughter had come to the island 12 years before. When Miranda was a mere baby, she could hardly remember having seen any human face except her father's. As for Caliban, he hardly looked human. He looked more like a fish than a man. तो फादर एंड डॉटर यानी प्रॉस्पेरियो और उसकी बेटी मिरांडा इस आइलैंड पे आए थे 12 साल पहले, जब मिरांडा एक छोटी सी बच्ची थी और मिरांडा को कोई भी इंसानी शक्ल याद नहीं थी, सिर्फ उसके फादर के, क्योंकि उस आइलैंड पे 3 ही लोग थे, उसका फादर, वो और कैलिबिन. और अगर हम कैलिबिन की बात करें, ही वॉज मोर लाइक अ फिश इन द अपीयरेंस. Prospero had another servant, a separate named Ariel, whom he commanded by means of his magic. Before Prospero's arrival, there lived on the island a witch named Sycorax. The ugly Caliban was her son.
She imprisoned Ariel in the heart of a pine tree, and she died without releasing him. Prospero, on his arrival on the island, found him and released him. Ariel became Prospero's faithful servant and carried out his master's wishes. At Prospero's command, he would raise storms in the sea or make thunder in the air. प्रॉस्पेरो जो है उसके पास और एक सर्वेंट था जिसका नाम क्या था, एरियल. वो एक रूह थी, ठीक है. और जो प्रॉस्पेरो है वो अपने कमांड से उसको यानी वहाँ पर आना होता था एरियल को, और उसकी कमांड्स प्रॉस्पेरोस की कमांड्स फुलफ़िल करता था. प्रॉस्पेरो के उस आइलैंड से आने से पहले वहाँ एक विच रहती थी, एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम क्या था, रल रहती थी जिसका नाम साइकोरस था, ठीक है. और उसका बेटा जो था उसका नाम था कैलिबिन, ठीक है. और उसी ने एरियल को एक पाइन ट्री में कैद करके रखा था और वो मर गई और एरियल वहीं के वहीं रह गया. जो ही प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पे आता है वो उसको ये एरियल मिल जाता है और उसको ये पाइन ट्री से बाहर निकालता है. और जो ही वो एरियल को पाइन ट्री से बाहर निकालता है तो वो क्या बनता है, उसका वफ़ादार सर्वेंट बनता है और उसके सारे विशेस फुलफ़िल करता है. और प्रॉस्पेरो के कमांड पे स्टॉर्म्स लाता है सी में या थंडरिंग करता है हवा में, ठीक है. यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको प्रॉस्पेरो देता है वो इंस्ट्रक्शंस फुलफ़िल करता है. One day there arose a terrible storm in the sea. As Miranda looked out, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. "Oh, Father," she said, "if you have, by your power, raised this tempest, please put an end to it. What a fine ship is there, struggling in the cruel waves." The cries of the drowning sailors seemed to knock against my very heart. एक दिन बहुत ही खतरनाक तूफ़ान आता है समंदर में, ठीक है. और मिरिंडा जब बाहर देखती है वो देखती है एक अच्छी खासी शिप जो है वो जदोजहद कर रही होती है इस स्टॉर्म के बीच में. मिडेस्ट मीन्स मिडल. तो वो अपने फादर को बोलती है अगर आपने अपने जादू से इस स्टॉर्म में अगर आपका कोई भी हाथ है, इस स्टॉर्म में अगर आपका कोई भी हाथ है, प्लीज़ इसको यहीं पर रोक दीजिए. देखिए कितनी अच्छी शिप जद्दोजहद कर रही है इन वेव्स में, और जो ये डूबने वाले सेलर्स हैं इनकी जो चीखें हैं वो मेरे दिल पे चुभ रही हैं. "Do not be afraid," replied Prospero. "Not a single person shall perish. As for the storm, I have raised it for your sake. I have done it for you, my beloved daughter, who do not know who you are." तो ये अपनी बेटी को बोलते तुम डरो मत, एक भी इंसान की डेथ नहीं होगी इस शिप में. अगर मैं स्टॉर्म की बात करूं तो ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ठीक है. और तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो. Now for the first time Prospero told Miranda the strange story of her life. 12 years ago, he said, I was Duke of Milan. Knowledge was my chief aim in life. Wealth and worldly possessions hardly matters to me. अब पहली बार प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को एक स्ट्रेंज स्टोरी सुनाता है अपने उसकी लाइफ के बारे में और अपने बारे में भी. कहते कि 12 साल पहले मैं राजा हुआ करता था, लेकिन मेरी जो ओनली एम थी दैट वाज टू अचीव द नॉलेज. वर्ल्डली पोजीशन यानी वेल्थ प्रॉपर्टी ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे.
leaving the management of state affairs to my brother Antonio, whose loyalty I never doubted. I devoted all my time to secret studies. तो अभी तक हमने कैरेक्टर्स क्या पढ़े थे? फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था, इट वाज अबाउट प्रॉस्पेरियो, उसकी डॉटर मिरांडा. ओके, आफ्टर दैट इट वाज अबाउट टू सर्वेंट्स, कैल्बन एंड एरियल. ओके, अब हमारे पास और एक कैरेक्टर आता है एंटोनियो. ये प्रॉस्पेरियो का क्या होता है? ब्रदर. तो प्रॉस्पेरियो अपनी बेटी को कहता है कि ये कहानी सुना रहा होता है कि 12 साल पहले क्या हो गया होता है. ये कहता है कि मैं तो राजा था, ड्यूक था, तो मेरे को दुनिया में यानी वर्ल्डली पोजीशन में, प्रॉपर्टी में, वेल्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो मैंने अपने पूरी जो प्रजा का काम था वो अपने भाई को दे दिया. मींस उसको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी दे दी. और जिसकी लॉयल्टी, जिसकी ऑनेस्टी मैंने कभी भी डाउट नहीं की थी, सब कुछ उसको दे दिया. और अपना पूरा काम मैंने सर्व कर लिया कि मैं सीक्रेट स्टडीज़ यानी मैजिक वैजिक के ऊपर वो पढ़ाई कर लूँ. ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए. अभी तक हमने टोटल में 5 कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया. ओके, लेट्स मूव. Meanwhile, he grew greedy for power and position. He bribed my ministers and plotted against me with my enemy, the King of Naples. Now, Ori character, King of Naples. One dark night, their soldiers took me out of my palace, with you crying in my arms. They didn't dare to kill us openly, so they put us into an old and damaged ship that could hardly float and left us to perish at sea. तो कहते हैं कि इसी दौरान जो मेरा भाई है, ही यहाँ पर एंटोनियो, वो बहुत ही ज़्यादा लालची बन गया फॉर अचीविंग दिस पावर एंड पोजीशन. उसने मेरे जो मिनिस्टर्स थे उनको ब्राइब किया. ठीक है, तो उसके बाद मेरे खिलाफ साजिश रची मेरे ही दुश्मन के साथ मिलके, किंग ऑफ नेपल्स के साथ. और एक अंधेरी रात उनके सोल्जर्स ने मुझे पैलेस से बाहर निकाला और तुम मेरी गोदी में रो रही थी. वो हमें ओपनली सबके सामने तो नहीं मार सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें पुरानी टूटी फूटी एक शिप में डाल दिया जो हार्डली फ्लोट कर सकती थी, और पूरा पता था कि इस शिप में हम मर जाएंगे. ठीक है, तो इसका जो भाई है एंटोनियो, वो इसके दुश्मन के साथ मिलके यानी किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलके प्लॉट करता है, इसको वहाँ से बाहर निकालता है पैलेस से, और इनको मरने के लिए छोड़ जाते हैं एक टूटी फूटी शिप में. बट देयर वॉज अ काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गोंजालो. He was loyal to me at heart and was not in favor of Antonio's plot. He secretly stored the ship with fresh water, food, and clothes, and my precious books, which I valued more than my dukedom. Driven by favorable winds, we floated to this lonely island. फिर प्रॉस्पेरो कहता है अपनी बेटी को कि लेकिन वहाँ पर एक काइंड ओल्ड लॉर्ड था, मेरा एक पुराना वफादार सोल्जर था. सो गोंजालो वाज ऑनेस्ट विद प्रॉस्पेरियो एंड एट द सेम टाइम ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियो. और जो भी एंटोनियो की चाल थी अगेंस्ट प्रॉस्पेरियो की, वो उसमें नहीं था उसके साथ. तो ये जो शिप है टूटी फूटी, उसको उसने चोरी चोरी उसमें फ्रेश वाटर, फूड, क्लोथ्स और जो प्रीशियस बुक्स थे किसके, प्रॉस्पेरियो के, जो वो ज़्यादातर उसी में रहता था इन्वॉल्व. ठीक है,
तो वो सब उसने इस शिप में रख दिए और कुछ फेवरेबल विंड्स के सहारे वो इस आइलैंड पे पहुंच गए जहां वो अभी 12 साल पहले आए थे और अभी भी वहीं रह रहे थे। बट what is your reason for raising this tempest? asked Miranda, who was still thinking of the drawing sailors. फिर भी मिरांडा के दिमाग में इन्हीं सेलर्स के बारे में शी वॉज वेरी मच थिंकिंग अबाउट देम और काफ़ी फ़िक्रमंद भी थी। एंड शी इज़ आस्किंग हर फादर कि क्या रीज़न है कि आपने ये तूफ़ान मचाया है इस सी में। Fortune has now begun to favor me, replied Prospero. The tempest has, in a strange manner, brought all my enemies to this island. They are in the ship, you see. For the present, it is enough for you to know that much. Then the Prospero touched Miranda gently with his magic wand, and she fell asleep. सो प्रॉस्पेरो कहता है कि किस्मत ने आज मुझे फेवर किया है, मेरे सारे जो दुश्मन हैं वो इस शिप में है और जो टेम्पेस्ट है वो इन्हीं के लिए मैंने रेज़ किया है और अभी के लिए इतना ही जानना तुम्हारे लिए काफ़ी है। और अपनी जादू की छड़ी से वो अपनी बेटी मिरांडा को टच करता है और वो सो जाती है। Come, my Ariel, come, said Prospero, waving his magic wand. Ariel appeared. Again, अब ये इसी मैजिक वैंड को हिला रहा है और यहाँ पर एरियल को बुला भी रहा है कि एरियल आ जाओ, और एरियल इसके सामने आ जाता है। Here I am, master, he said. I am ready to go wherever you ask me to go and to do whatever you want. मास्टर, मैं यहाँ हूँ और मैं हर किसी जगह जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ पर भी आप मुझे बोलोगे जाने के लिए, और वो सब काम करूँगा जो आप मुझे इंस्ट्रक्ट करोगे। Have you performed the task I gave you? Yes, master, I have done everything just as you commanded me. तो पहले प्रॉस्पेरियो पूछता है एरियल से कि जो भी मैंने तुम्हें टास्क दिया था यानी वो स्टॉर्म का, वो तुमने किया? तो वो कहता है हाँ मास्टर, जो भी आपने मुझे कमांड किया था, इंस्ट्रक्ट किया था, ऑर्डर दिया था, वो काम मैंने कर लिया है बिल्कुल वैसे ही जैसे ही आपने बोला था। I attacked the ship with storm, fire and thunder till the sailors gave up in despair. Not a single person in the ship kept his head. The king's son, Ferdinand, leaped into the sea. Now he is staying sadly in a corner of the island, thinking that his father is drowned. Meanwhile, in another part of the island, the king, your brother, and the others are looking for Ferdinand, who they fear is drowned. As for the ship, I have brought it safely to the harbor. आई यहाँ पर एरियल है, तो एरियल कहता कि मैंने शिप पे अटैक किया विद द स्टॉर्म, शिप एंड थंडर, तब तक जब तक कि बहुत ज़्यादा जो सेलर्स है वो इसमें बहुत ज़्यादा डर गए। ठीक है, और एक भी जो इंसान है उनने अपना सर ऊपर नहीं किया, यानी डर के मारे वो नीचे ही बैठ गए। और जो कि इनका सन है यानी एंटोनियो का जब बेटा है फर्डिनेंड, उसने छलांग मारी सी में। अब क्या है कि ही स्टिंग इन द कॉर्नर ऑफ द आइलैंड, वो एक कॉर्नर में बैठा आइलैंड के और सोच रहा है कि शायद उसका जो फादर है वो डूब गया। और उसी टाइम पे दूसरे पार्ट ऑफ द आइलैंड पे, दूसरे इलाके में, इसी आइलैंड के इसका फादर और बाकी लोग हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि फर्डिनेंड जो है वो डूब गया। और अगर मैं शिप की बात करूं तो शिप को मैंने सेफली हार्बर पे लाया है। ठीक है,
You have performed your task perfectly, said Prosperio. Now we have some very important work on our hands. The time between now and evening is precious for both of us. तो यहाँ पर प्रॉस्पेरियो कहता है किसको, एरियल को, कि तुमने अपना काम अच्छे से किया है, यू हैव डन द टास्क वेरी परफेक्टली। अब कुछ हमें और भी इम्पोर्टेंट काम करना है। अभी का वक्त, अभी से लेकर शाम का वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। मोर वर्क सर, लेट मी रिमाइंड यू of the promise you gave me, namely to give me my freedom. तो और काम, ये जो लाइन है ये एरियल कहता है कि और काम सर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे आज़ाद करोगे। What? said Prosperio angrily. How dare you ask me for freedom before the time is out? Where would you be but for me? I have to remind you how I released you from the pine tree. तो प्रॉस्पेरियो बहुत गुस्से में आता है, कहता है कि तुमने कैसे मुझे बोला कि यू हैव टू सेट मी फ्री, वो भी अभी तुम्हारा काम, यानी अभी तुम्हारा टाइम जो तुम्हें मेरे लिए काम करना था वो अभी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि कैसे तुम्हें मैंने पाइन ट्री से आज़ाद किया था। I am sorry, master. I will obey you willingly, said Ariel. Good, said Prosperio. After 2 days I will set you free. Meanwhile, carry out your task with a good heart. तो जो यहाँ पर अगेन एरियल है वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मैं आपका सारा काम करूँगा, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूँगा खुशी खुशी। प्रॉस्पेरो कहता है इट्स वेरी गुड, for 2 days you have to work with me and after that I will set you free. Then Prosperio told him what he should do, and away went Ariel happily to the place where Ferdinand said weeping over his father's death. तो प्रॉस्पेरियो फर्दर उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि उसको क्या काम करना है। प्रॉस्पेरियो फिर एरियल को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसको क्या काम करता है, और एरियल खुशी खुशी चला जाता है उस जगह पर जहाँ पर फर्डिनेंड रो रहा होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई। नाउ इट्स टाइम फॉर टेम्पेस्ट पार्ट 2। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि जो ये स्टोरी है ये स्टार्ट होती है एक लोनली आइलैंड पे जहाँ पर प्रॉस्पेरियो होता है, ठीक है, वो इस आइलैंड पे आता है, ठीक है, और उसकी बेटी होती है मिरांडा, ठीक है, वो 12 साल पहले आ गए होते हैं इस आइलैंड पे, और इस आइलैंड पे उनको एक कैल्विन मिलता है, ठीक है, एक लड़का मिलता है और वो एक फ़िश जैसा दिखता है, और एक सर्वेंट होता है एरियल जो कि एक रूह होती है। कैल्विन जो है वहाँ पर एक साइकोरस, एक विच रहती है जिसका ये बेटा होता है, और उसी ने एरियल को एक पाइन ट्री में कैद करके रखा होता है, राइट। तो जो ही प्रॉस्पेरियो इस आइलैंड पे आता है उसको एरियल मिलता है और वो उसको आज़ाद करता है। इन द मीन टाइम हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रॉस्पेरियो का ब्रदर होता है एंटोनियो, प्रॉस्पेरियो उस पर भरोसा करके उसको अपनी सारी ये ड्यूकडॉम देता है, लेकिन एंटोनियो इन द मीन वाइल वो ग्रीडी हो जाता है और वो किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलके प्रॉस्पेरियो के खिलाफ प्लॉटिंग करता है, और प्रॉस्पेरियो को एक अंधेरी रात में उसको बेटी को लेकर वहाँ से निकालते हैं पैलेस से, एक टूटी हुई शिप में डालते हैं, और उस शिप में कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो कभी भी ये लोग डूब सकते हैं। और जो प्रॉस्पेरियो का एक वफ़ादार सर्वेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम गोंजालो होता है,
तो वो उस शिप में इसकी कुछ प्रीशियस बुक्स रखता है, क्योंकि ये सीक्रेट स्टडीज़ कर रहा होता है, तभी इसने ड्यूकडॉम अपने भाई को दी होती है। ये जो गोंज़ला है ये इस शिप में वो सीक्रेट बुक्स रखता है, कुछ फूड रखता है, फ्रेश वाटर रखता है और क्लोथ्स रखता है। और कुछ फेवरेबल विंड्स के सहारे प्रॉस्पेरियो और मिरांडा इस आइलैंड पे पहुंचते हैं, जहां पर इनको कैल्विन और एरियल मिलते हैं। ठीक है। और एक दिन क्या होता है, एक दिन जो प्रॉस्पेरियो है वो पानी में एक सी में एक तूफ़ान लाता है, और उसकी बेटी उसको पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो प्रॉस्पेरियो कहता है कि आज किस्मत ने क्या किया कि मेरे सारे दुश्मनों को इसी शिप में डाला है, अब मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि उनने मेरे साथ गलत किया। ठीक है। तो ये है ये कहानी, एंड प्रॉस्पेरियो के इस सब काम में ये जो एरियल है ये उसकी काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। सो नाउ टेम्पेस्ट एज आई टोल्ड यू इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको समझा दी है अच्छे से। नाउ वी हैव टू डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ द टेम्पेस्ट। Remaining invisible, Ariel sang a beautiful song and led Ferdinand to the place where Prospero and Miranda were. तो एरियल दिख नहीं रहा था किसी को, क्योंकि वो एक सेपरेट है। ठीक है। तो वो एक ब्यूटीफुल सा गाना गाता है एंड फर्डिनेंड को उस जगह ले जाता है जहाँ पर ऑलरेडी प्रॉस्पेरियो और उसकी बेटी जिस पार्ट ऑफ आयरलैंड में होती है वहीं पर ले जाता है फर्डिनेंड को। What is that, father? asked Miranda in wonder when she saw Ferdinand at a distance. तो मिरांडा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है जब वो देखती है फर्डिनेंड को दूर से, और वो अपने फादर को पूछती है ये क्या है। Is it a spirit? It has a noble and beautiful appearance. क्या ये कोई रूह है? इसकी जो appearance है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। Miranda, as you know, had not known what a young man looked like, and moreover Ferdinand was a handsome young man. हमें पहले ही बताया गया था इस स्टोरी में कि जो मिरांडा है उसने कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा, कभी कभी किसी यंग मैन को नहीं देखा, और इसके बावजूद जो फर्डिनेंड था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी था और यंग भी था। Seeing Miranda, Ferdinand thought that she was the goddess of this island of wonders, where he had just heard Ariel's strange sounding song. He fell on his knees and began to speak to her as to a goddess. You can imagine his surprise when he heard her say sweetly in his own language, Sir, I am no goddess, but a simple girl. इन द मीन वाइल फर्डिनेंड जब दूर से देखता है मिरांडा को भी उसको ऐसा एहसास होता है, ऐसा उसको लगता है कि ये इस आइलैंड की गॉडेस है, जहाँ पर अभी अभी एरियल ने एक अजीब साउंड प्रोड्यूस किया होता है, एक अजीब गाना गाया होता है। वो अपने घुटनों पे बैठ के उससे बात कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है जब उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनता है, जब उसको वो अपनी भाषा में कहती है कि मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ सर, बल्कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at first sight. But in order to test Ferdinand's love, Prospero pretended to think that the young man was a spy. Prospero बहुत खुश होता है in order to see that the both people had fallen for each other. But वो टेस्ट करना चाहता है फर्डिनेंड को, फर्डिनेंड के प्यार को, जो वो उसकी बेटी से मोहब्बत करता है उसको टेस्ट करना चाहता था। एट द सेम टाइम वो प्रिटेंड करता है कि ये जो यंग मैन है ये स्पाई है। स्पाई हम उसको कहते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट सीक्रेट इंफॉर्मेशन। Come along, young man,
he said roughly. बहुत ही गुस्से में कहता है प्रॉस्पेरियो किसको, फर्डिनेंड को, कि मेरे साथ आ जाओ. You are a spy who has come to steal this island from me. You are now my prisoner. Ferdinand tried to resist and drew his sword, but waving his wand, Prospero fixed him to the spot by the power of his magic. Miranda hung upon her father and pleaded for Ferdinand. जो प्रॉस्पेरियो है वो अपनी कन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट करता है कि मुझे पता है, फर्डिनेंड को कहता है कि मुझे पता है तुम एक स्पाई हो और तुम यहाँ आए हो इस आइलैंड को हमसे छीनने, अब तुम मेरे कैदी हो. फर्डिनेंड ये सब रोकना चाहता है, वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन प्रॉस्पेरियो अपने वैंड की, मैजिक वैंड की मदद से उसको एक जगह फिक्स करता है. मिरांडा जो है बहुत ज़्यादा प्लीड करने लगती है उसके फादर को कि फर्डिनेंड को छोड़ने के लिए. ठीक है. Please don't treat him like that, father. He cannot be a spy. He doesn't look like one. तो वो प्लीड करती है बहुत ज़्यादा अपने फादर को कि इसको ऐसे ट्रीट मत करो फादर, ही कांट बी अ स्पाई, ये स्पाई जैसा लगता या स्पाई जैसा दिखता नहीं है. साइलेंस, सेड प्रॉस्पेरियो. आर यू ट्राइंग टू टीच मी? Perhaps you think he is the most beautiful person on the earth because you have seen only Caliban and me. Compared to Caliban, he seems handsome enough, but compared to other men, he is Caliban. Then my desires are most humble, replied Miranda. I do not wish to see a handsome person. Okay. तो पहले ही जो मिरांडा है वो बहुत ज़्यादा प्लीड करती है अपने फादर को कि डोंट ट्रीट हिम लाइक दैट, ही इज़ नॉट अ स्पाई बिकॉज ही डजंट लुक लाइक अ स्पाई. तो प्रॉस्पेरियो उसको बोलता है चुप करो, तुम क्या मुझे सिखा रही हो, यहाँ पर सिखाना क्या चाहती हो? शायद तुमने पहली बार कोई हैंडसम इंसान देखा है और तुम्हें लगता है कि बस इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा अर्थ पे, क्यों, इस ज़मीन पे, क्योंकि तुमने सिर्फ कैल्बिन को देखा है और मुझे देखा है. हाँ, अगर हम कैल्बिन के साथ कंपेयर करेंगे फर्डिनेंड को, वो हैंडसम है, लेकिन अगर हम इस अर्थ के बाकी मर्दों के साथ कंपेयर करेंगे फर्डिनेंड को, देन फर्डिनेंड इज़ लाइक अ कैल्बिन. तो मिरांडा कहती है कि फिर मेरे डिज़ायर्स, मेरे शौक़ बहुत सिंपल है कि मैं दुनिया के किसी दूसरे हैंडसम इंसान को नहीं देखना चाहती हूँ. मेरे लिए ही इज़ द ओनली हैंडसम मैन ऑन द अर्थ. तो ऐसी ये कन्वर्सेशन हुई फादर और बेटी के बीच में, यानी प्रॉस्पेरियो और मिरांडा के बीच में. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Okay. Come along, sir, Prospero said to Ferdinand, leading him away. Ferdinand could hardly resist the power of Prospero's magic, and he had to follow. He said to himself, my misfortunes and this unkind treatment would be nothing to me if from my prison window I could see this girl once a day. तो प्रॉस्पेरो उसको अपने साथ ले जाता है, ठीक है, और आगे आगे चलता है फर्डिनेंड की. तो फर्डिनेंड हार्डली रोक सकता था इस पार को, वो इसी पार में चला जा रहा था. ये जो फोर्सफुल पार था, किसका, मैजिक पार था प्रॉस्पेरो को, और ही वाज बाउंड टू फॉलो प्रॉस्पेरो. तो वो अपने साथ ही कहता है कि मेरी बदकिस्मती और आप ये अनकाइंड बिहेवियर मेरे लिए कुछ भी नहीं है. अगर रोज़ मेरी जो इस प्रिजन की खिड़की से ये लड़की मुझे एक बार दिख जाए, ये मेरे लिए बहुत है. Prospero set him the task of piling up heavy logs. Miranda stole out of her room to see him at work, and her presence made his labor seem light to him. Prospero जो है वो एक काम देता है
इस कैदी को, फर्डिनेंड को, कि इसको लकड़ी उठानी पड़ती है, बड़े बड़े पाइल्स उठाने पड़ते हैं लॉग्स के। हेवी लॉग्स मीन्स बड़े बड़े जो ट्रंक्स होते हैं पेड़ के। मिरांडा जो है वो अपने कमरे से निकलती है चोरी चोरी और फर्डिनेंड के वहाँ पर आसपास होती है। इसकी वजह से, इसके वहाँ पर रहने से जो फर्डिनेंड का काम है उसको थोड़ा सा हल्का लगता है, यानी उतना भारी नहीं पड़ता है फर्डिनेंड के लिए ये काम। Alas, sir, she said, please sit down and rest a little. I will carry your logs in the meantime. I quite like it. Let me carry the logs. My father is at his studies, safely out of our way for the next 3 hours. In fact, Prospero was all the time standing at a distance, watching his daughter with amusement and sympathy. मिरांडा कहती है फर्डिनेंड को, आप थोड़ी देर बैठें और रेस्ट करें और आपका ये काम जो है मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। और हम, मेरे जो फादर हैं वो स्टडी कर रहे हैं और हमारे रास्ते में वो नहीं आएंगे अगले 3 घंटे तक। इनफैक्ट सच्चाई ये होती है कि जो प्रॉस्पेरियो है वो सारा वक्त इन्हीं दोनों को देख रहा होता है। वो अपनी बेटी को जब देखता है, ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हर, सिंपैथी, तरस भी आ रहा था उसको अपनी बेटी पर, और वो खुश भी हो रहा था, एंड ही वॉज लाफिंग एट द सेम टाइम। नो माई प्रीशियस क्रिएचर, रिप्लाइड फर्डिनेंड, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट। तो ये जो फर्डिनेंड है ये अपने प्यारे प्यारे अल्फाजों से मिरांडा को कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दे सकता हूँ। Of course, this love talk did not help the work of piling up logs, but Ferdinand managed to tell Miranda how he loved her better than anyone else he had ever seen. As for Miranda, she could not imagine a person whom she could love more. तो ऑफ़ कोर्स ये जो प्यारी प्यारी बातें हैं इनसे तो ये काम हो नहीं पाया, मतलब इसका कोई असर इसके काम पे तो नहीं पड़ा, लेकिन फर्डिनेंड ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि ये कहा कि दुनिया में वो जितने लोगों से मिला है उन सब से प्यारा इंसान उसको मिरांडा ही लगी है। और मिरांडा जो है वो भी अपने प्यार का इजहार करती है कि उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया है कि, या उसने लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया कि वो किसी से इतनी मोहब्बत करेगी जितनी वो फर्डिनेंड से करने लगी थी। Prospero decided not to test Ferdinand further and soon released him from his hard task. The trials you have undergone were a test of your love, said Prospero, to the great joy and surprise of Ferdinand. As your reward, I give you my daughter, who is most precious possession. My blessings are with you both. तो प्रॉस्पेरियो ये सब देख के सोचता है कि आई शुड नॉट टेस्ट फर्डिनेंड फर्दर, तो वो उसको रिलीज़ करता है, यानी इस काम से आज़ाद करता है। अब वो ये कहता है कि ये जो ट्रायल्स थे, ये जो टफ़ टास्क मैं तुम्हें दे रहा था, ये बस एक टेस्ट था। किसके लिए? तुम्हारे प्यार को प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो। एंड it was a great surprise for Ferdinand that this was not the real task, this was just a test, and he has passed the test successfully. और उसके बाद प्रॉस्पेरियो कहता है कि इसके बदले में जो तुमने काम किया है और जो इस टेस्ट में जो तुम पास हुए हो, इसके रिवॉर्ड में मैं तुम्हें अपनी डॉटर को दूंगा, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस प्रॉपर्टी है, प्रीशियस पोसेशन है, यानी जो भी मेरे पास चीज़ें हैं उन सब से ख़ास मेरे लिए मेरी बेटी है, और मैं वो तुम्हें इनाम में देता हूँ क्योंकि तुम तुम्हारे टेस्ट में पास हो गए हो, और मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं वो तुम दोनों के साथ हैं। ओके। In the meantime, the king of Naples, Antonio Gonzalo, who was in the king's party, and others were wandering about on the island. अब ये तो कहानी थी फर्डिनेंड प्रॉस्पेरियो और मिरांडा की, ठीक है, और दूसरी साइड से
एक शिप में बाकी भी लोग थे, जैसे किंग ऑफ नेपल्स, एंटोनियो एंड गोंजाला, जो आइलैंड के उधर इधर एक जगह से दूसरी जगह चल रहे थे। Tired out and hungry, they sat down to rest. अब वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत भूखे भी थे। अब वो एक जगह बैठे आराम करने के लिए। Ariel put inviting food before them, but when they tried to eat it, it disappeared suddenly. Ariel ने खाना सामने रखा, ठीक है, उनके सामने खाना प्रोड्यूस कर रहा था। फिर जब वो बैठ रहे थे खाना खाने के लिए, तो अचानक से ये खाना गायब हो जाता था। Ariel appeared to them with thunder and lightning, और उसके बाद लाइटनिंग और थंडर वहाँ पर प्रोड्यूस किया फिर से एरियल ने। While they stood amazed at the sight, he said to Antonio and the king, "You are two men guilty before God and man. Think of your evil deeds. Remember how cruelly you treated Prospero and his innocent child." तो जो ही ये सब हादसा हो रहा था इनके साथ, ये सब चीज़ें एरियल कर रहा था इनके साथ, और वो लोग अभी सोच ही नहीं पा रहे थे कि हमारी आंखों के सामने क्या सीन हो रहा है। तो तभी एरियल कहता है एंटोनियो को और किंग को कि तुम दो जो इंसान हो, यू आर गिल्टी, ठीक है, इंसान के सामने भी और खुदा के सामने भी। सोचो तुमने क्या क्या गलत गलत काम किए हैं, याद करो तुमने क्या क्या गलत गलत काम किए हैं। याद आया कितने बुरे तरीके से तुमने प्रॉस्पेरियो और उसकी बेटी के साथ ना ट्रीट किया है उनको, कितने गंदे तरीके से आपने उनको पैलेस से निकाला और एक ख़राब जो टूटी फूटी शिप थी उसमें उनको डाला मरने के लिए ताकि वो मर जाएं। It was a terrible crime. All that you have undergone is God's punishment for your crimes. और आपने एक बहुत ही बड़ा खतरनाक गुनाह किया है, और जो भी कुछ अभी तुम लोगों के साथ हो रहा है, दिस इज़ द पनिशमेंट। जो तुम लोगों ने गुनाह किया है, क्राइम किया है, ये उसकी सज़ा तुम लोगों को मिल रही है। If you do not sincerely repent of your evil deeds, there is worse in store for you. और अगर तुम लोगों ने सिंसियरली पूरे दिल से अगर तुम लोग रिपेंट नहीं करोगे, सॉरी नहीं बोलोगे अपनी गलतियों के लिए, अपने जो इवल डीड्स के लिए आप माजरत नहीं करोगे, तो मेरे पास और भी कुछ है, तुम लोगों के साथ और भी इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilty. और एरियल वहाँ से चला जाता है, फिर से थंडरिंग एंड लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है और वो पागल हो जाते हैं डर के मारे। एट द सेम टाइम दे आर फीलिंग लिटिल बिट गिल्टी टू। Now that they have sincerely repented, we need not punish them further, said Prospero to Ariel. अब प्रॉस्पेरियो एरियल को कहता है कि अब उन्होंने सिंसियरली तहे दिल से वो लोग पछता रहे हैं एंड दे आर फीलिंग सॉरी, सो वी डोंट नीड टू पनिश देम मोर। अब हमें उनको और सज़ा नहीं देनी चाहिए क्योंकि दे आर ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी फॉर द क्राइम्स दे हैव डन। एरियल लेड देम टू द प्लेस वे प्रॉस्पेरियो वॉज। एरियल जो है उन सब को, यानी किंग ऑफ नेपल्स को, एंटोनियो को, गोंजाला को और जो बाकी जो लोग होते हैं उनको वहाँ ले जाता है जहाँ पर प्रॉस्पेरियो होता है। When they saw Prospero, they were so amazed that at first they could hardly believe their eyes. The king agreed to restore the dukedom to Prospero, and Prospero on his part forgave the king all that was past. The king told Prospero how they had been shipwrecked and how he had lost Ferdinand, his dear son, in the wreck. तो जब ये लोग देखते हैं प्रॉस्पेरियो को ज़िंदा, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन
पहले उनको बिलीव ही नहीं होता है कि उन लोगों ने प्रॉस्पेरियो को ज़िंदा देखा है। और जो किंग होता है इस टाइम पे, यानी प्रॉस्पेरियो का ब्रदर एंटोनियो, इस टाइम पे क्या होता है, किंग होता है। ठीक है, तो किंग जो है वो एग्री करता है कि ये जो चीज़ है, ये जो ड्यूकडॉम थी, इसकी हुकूमत थी, वो प्रॉस्पेरियो को वापस देगा। और प्रॉस्पेरियो क्या करेगा, ही विल फॉरगिव देम ऑल। जो भी कुछ पास्ट में एंटोनियो ने, किंग ऑफ नेपल्स ने और बाकी सब ने इसके साथ किया, वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो किंग है वो प्रॉस्पेरियो को कहता है, किंग मीन्स एंटोनियो, जो कि प्रॉस्पेरियो का भाई भी होता है। वो पूरी कहानी जो हुई होती है, यानी कैसे इनकी शिप तूफान में लड़ रही थी और कैसे उसने अपने बेटे को खोया, किस बेटे को, फर्डिनेंड को, इस तूफान में जहाँ पर ये शिप इनकी डूब गई, तबाह हो गई, कैसे उसने फर्डिनेंड को खोया, ये पूरी कहानी ये प्रॉस्पेरियो को बोलता है। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि ये सब किसने किया होता है, प्रॉस्पेरियो को। ये जो तूफान है ये किसने किया होता है, ये प्रॉस्पेरियो ने किया होता है, ताकि ये सारे लोग जो है वो रिपेंट करें, जो भी इन्होंने इविल डीड्स किए हैं, गलत तरीके से प्रॉस्पेरियो को और इसकी बेटी को ट्रीट किया है, उससे ये इनको एग्री कराए कि उनसे ये गलती हुई है। ठीक है। am very sorry to hear of your loss, said Prospero. तो प्रॉस्पेरो कहता है कि सॉरी, तुमने अपना बेटा खोया, तो ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, एंड आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दिस। आई लॉस्ट माई डॉटर टू इन द टेम्पेस्ट। मैंने भी इस तूफ़ान में अपनी बेटी को खोया है। इन अ सेंस प्रॉस्पेरियो वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, बिकॉज तो यहाँ पर एक रिकन्सिलेशन हो रहा है, अब रीयूनियन हो रहा है एंटोनियो का, प्रॉस्पेरियो का, किंग ऑफ नेपल्स और बाकी सब का। क्योंकि मेन बात जो थी प्रॉस्पेरियो की कि ये सबको पछतावा होना चाहिए, इनको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि इन्होंने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ गलत किया है। तो अब यहाँ पर इसीलिए इसने ये एक स्टॉर्म पैदा किया था सी में, ताकि उनको रियलाइज़ हो जाए जो वो मेरे साथ करना चाहते थे, मुझे एक टूटी फूटी शिप में रखा था। ठीक है, उनको याद आए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, कैसा मुझे तब रियलाइज़ हुआ होगा, कैसा मैंने तब इस सब चीज़ का सामना किया है। तो सेम चीज़ जो है प्रॉस्पेरियो ने इनके साथ की। आफ्टर दैट इनको रियलाइज़ कराया एरियल की मदद से, यानी थंडरिंग, लाइटनिंग, कभी खाना प्रोड्यूस करना, इनको डराना, ताकि ये रिपेंट करे कि इनसे जो है कोई गलती हुई है। इन्होंने प्रॉस्पेरियो को और उसकी बेटी को रात में निकाला पैलेस से और उनको सफ़र करवाया। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते। आई एम वेरी सॉरी टू हेयर ऑफ योर लॉस, said Prospero. I lost my daughter too in the tempest. In a sense, Prospero was speaking the truth, because he had lost his daughter to Ferdinand. How I wish they were both alive, said the king, to be king and queen of Naples. तो एट द सेम टाइम जो प्रॉस्पेरियो है वो कहता है कि आई एम सॉरी कि मैंने सुना कि आपने अपने बेटे को खोया है, एंड आई एम फीलिंग रियली सॉरी फॉर दिस, बट एट द सेम टाइम इन द मीन वाइल आई हैव लॉस्ट माई डॉटर टू इन दिस टेम्पेस्ट। तो इस टेम्पेस्ट में अपनी बेटी को भी खोया है। एक सेंस में जो प्रॉस्पेरियो है वो सच ही कह रहा था कि उसने अपनी बेटी को खोया है, बिकॉज नाउ हिज डॉटर वाज गोइंग टू मैरी फर्डिनेंड, उसको छोड़ के जा रही थी। अब उसकी जो डॉटर है वो अब फर्डिनेंड की वाइफ बनने वाली थी। ठीक है, तो किंग कहता है कि काश वो दोनों ज़िंदा होते तो आज उनकी हम शादी कराते, टू बी द future king and queen of Naples. Prospero took the party into his cave and showed them Ferdinand and Miranda, who were happily playing chess. तो कुछ देर बाद जो प्रॉस्पेरो है वो इस सारी पार्टी को, यानी एंटोनियो को, गोंज़ला को और जो किंग ऑफ नेपल्स था, इन सब को ले जाता है केव में, एक गुफा में, और दिखाता है इनको फर्डिनेंड एंड मिरांडा कि वो दोनों क्या थे, ज़िंदा थे। उनको दिखाता है कि दे बोथ आर अलाइव एंड व्हाट दे वर डूइंग एट दैट टाइम, दे वर प्लेइंग द चेस।
Now, last slide, I guess, is here. "Oh, wonder," said Miranda, when she saw so many people together. "How many wonderful people there are here. How beautiful mankind is." हम सबको पता है कि इस स्टोरी में हमने पहले ही सुना था, देखा था कि मिरांडा जो है कि उसने कभी भी कोई इंसानी फेस नहीं देखा है एक्सेप्ट हर फादर, देन कैलिबियन, फिर फर्डिनेंड। अब वो इतने सारे ह्यूमन फेसेस को टुगेदर देखती है जब केव में, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अमेज थी बहुत ज़्यादा। तो कहती है कि कितना अच्छा लगता है ना जब बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे लोग आमने सामने होते हैं। एंड ये जो human faces, humanity, humans all together, how beautiful is this. Gonzalo, the kind old man who had helped Prospero, wept for joy to see this scene of reconciliation. जो गोंजालो था बहुत ही पुराना, काइंड, वफादार हेल्पर, सोल्जर प्रॉस्पेरियो का, और जिसने प्रॉस्पेरियो के शिप में वो सारी ज़रूरत की चीज़ें रखी थी, काफ़ी मदद की थी प्रॉस्पेरियो की जब उसके भाई ने उसको पैलेस से निकाला था। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, खुशी के आंसू जिसको कहते हैं हम, क्योंकि ये जो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का एक सीन था वो उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। Prospero broke his magic wand and buried his books of magic because he had no further use for them. आप सबको पता है कि जो प्रॉस्पेरो है उसने अपना ड्यूकडॉम इन्हीं बुक्स की वजह से छोड़ा था, क्योंकि ये जो बुक्स, सीक्रेट स्टडीज़ को हासिल करना, एजुकेशन को हासिल करना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें, इसका उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसीलिए जो प्रॉस्पेरो है, ठीक है, वो फिर जब उसको भाई ने निकाला, ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने लगा क्योंकि उसको एक बदला लेना था अपने भाई से। और ये भी कह सकते हैं कि उसका भाई रिपेंट करे और उसका भाई एग्री करे कि उसने उसके साथ गलत किया था, ये सब हमें देखना था, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो ने एट लास्ट अपनी जो मैजिक वैंड थी, उसकी जादू की छड़ी थी, वो तोड़ दी और अपने जो सारे बुक्स थे वो दफना दिए, बिकॉज़ अब कोई भी चीज़ उसको इस्तेमाल नहीं करनी थी। और लास्ट में एज़ यू नो उसने एरियल को भी फ्री कर दिया, जैसे कि उसने उससे वादा किया था। अब जो एरियल है वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको फ्री किया गया है, ठीक है। तो वो खुशी खुशी जाते हुए एक सॉन्ग गाता है, When the bee sucks there I suck, in a cowslip's bell I lie, there I couch where owls do cry, on the bat's back I do fly. After summer, merry, 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 shall I live now under the blossom that hangs on the bough. So, this is the song which was sung by Ariel. Prospero and party sailed to Naples, leaving Caliban in possession of the island. और लास्ट में क्या होता है, प्रॉस्पेरियो और जो सारी पार्टी है यानी एंटोनियो, किंग ऑफ नेपल्स, गॉन्सलो और बाकी सब सोल्जर्स, वो सब चले जाते हैं नेपल्स की ओर। सिर्फ वो कैरिबियन को लेकर नहीं जाता है, कैरिबियन को छोड़ जाता है वहीं आइलैंड पे, यानी वो सारी पार्टी, प्रॉस्पेरियो, फर्डिनेंड, उसकी बेटी मिरांडा, वो सब चले जाते हैं नेपल्स। और यहाँ पर एक तो वो एरियल को फ्री कर देता है, ठीक है, आइलैंड पे कैरिबियन को छोड़ देता है। सो बाकी ये सारी चली जाते हैं टुवर्ड्स द लैंड ऑफ नेपल्स। सो अब और एक सेंटेंस है जो कि हमें इस पे पढ़ना है। So the last sentence of this Tempest part 1 and part 2 is, Ariel helped them with favorable winds. That was his last service to his
मास्टर। और एरियल की लास्ट हेल्प क्या थी प्रॉस्पेरियो और उसकी पार्टी के लिए कि उसने कुछ फेवरेबल इवेंट्स वहाँ प्रोड्यूस की जिसकी वजह से वो नाप्लेस पे अच्छे से पहुँच जाए। और ये लास्ट सर्विस थी एरियल की टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरियो एंड हिज पार्टी। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप आपको ये पूरी स्टोरी टेम्पेस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से समझ में आई होगी। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, एनी डाउट, you can write in comments. I will reply you all soon. So kindly support my channel and thank you so much. Acha, one thing more, as you know, for class 10 there will be CBSE pattern from now onwards, so we have to include in our curriculum, in our syllabus, article writing also and a number of things. But in writing skills, I think I will include in this video article writing too. Nowadays आर्टिकल राइटिंग इज़ इन, क्योंकि ब्लॉगिंग भी होती है इस पर। तो मुझे लगता है क्लास 10 के लिए आपको क्लास 9 से ही प्रिपेयर रहना होगा। तो इसीलिए इस वीडियो के साथ मैं आर्टिकल राइटिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, लेकिन इसके साथ मैं और एक वीडियो वही आर्टिकल राइटिंग का अटैच कर रही हूँ। Please have a look on this video also. It will really help you. Thank you once again. What article writing is? It's a piece of writing written for a large audience. यानी अगर आप ऐसे लिखते हो तो वो कुछ ही लोग देखते हैं, यानी टीचर चेक करती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब आप कुछ लिखते हो, एक राइटर जब कुछ लिखता है तो वो पब्लिश के इंटेंशन से लिखता है, तभी वो अखबारों में देता है यूजुअली, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। Because the intention of the writer is to publish it in the newspaper, magazine, journal, या nowadays blogging भी होती है, isn't it? So एक writer क्यों लिखता है, किस बेसिस पे लिखता है? या तो वो लिखता है on the basis of his personal interest का कोई टॉपिक, या कोई करंट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, कुछ भी जो करंटली हो रहा है, जैसे nowadays कोरोना वायरस, ड्रग्स के बारे में, ऐसा कुछ जो टॉपिक इन हो। So dear students, we discussed what is article writing. Now it's time for format of article writing. First of all, टाइटल, एक कैची टाइटल होना और उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। कैची मीन्स टू ग्रैब द अटेंशन, राइट। तो बोल्ड लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर राइटिंग द title, it's time for to write by. By means to write your name. जिसका वो आर्टिकल है वो अपना नाम लिखेगा। अब एग्ज़ाम में क्या होता है, वहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना होता है और आपका नाम भी दिया गया होता है कि आप अपना नाम क्या मेंशन करेंगे। फाइन। सो नाउ इट्स टाइम फॉर कंटेंट। कंटेंट जो है इट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ओके। 4 पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड किया गया है। As you can see clearly in this slide, ठीक है। पैराग्राफ 1 में जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल सेव डल लेक है, तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है अबाउट द इशू कि डल लेक क्यों सेव करना है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ। उसके बाद एनालिसिस करना है टॉपिक का। फॉर एग्जांपल अब इसमें आपको सारे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल हेयर you can see in para 2 you can include types, consequences, causes, good or bad aspects, related information. तो ये सारा नहीं आएगा। related information की डल लेक के बारे में आप हिस्ट्री थोड़ा सा लिखोगे, ठीक है। अगर हम डल लेक को सेव नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं, ताकि प्रिकॉशनरी मेजर नहीं उठा रहे हैं ताकि डल लेक सेव हो जाए, तो उसके एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद इम्प्लिकेशंस, इसके बाद क्या होगा, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, एनवायरनमेंट पे, साइकोलॉजी पे, या हेल्थ रिलेटेड। मोस्टली इस पे एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा, राइट। और सोशली भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप पैरा 2 और 3 को कंबाइन भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट इट इज़ बेटर टू राइट द कंटेंट इन 4 पैराग्राफ्स, ओके। नाउ द लास्ट वन इज़ सॉल्यूशन
सजेशन और कंक्लूजन। लास्ट में ये आप अच्छे से मेंशन करोगे, कोई भी सजेशन होगी, सोल्यूशन होगा या कंक्लूजन क्या है, ये सब आप लिख सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेट, स्टार्टिंग विद टाइटल, देन बाय यानी राइटर का नाम, और कंटेंट कंसिस्ट ऑफ 4 पैराग्राफ्स। नाउ स्पेशल टिप्स फॉर यू while writing article. Tips: keep it simple, यानी कुछ बड़े बड़े वर्ड्स या टफ वर्ड्स एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है। स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगे ताकि आपके जो लॉन्ग सेंटेंस में है आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं बच्चे, सो यूज़ स्मॉल सेंटेंसेस ओनली। हाईलाइट योर मेन पॉइंट्स, क्योंकि आर्टिकल लिखना है, काफ़ी इलॉबरेटिव होता है, तो एग्जामिनर सब नहीं पढ़ता है, तो आप क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स को या तो ब्लॉक्स में, ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है, या हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा आप सुंदर सा लिखेंगे, ठीक है, मेन पॉइंट्स जो होंगे। कीप इट वेरी क्लीन, यानी आप क्या करते हो, वर्ड्स को इरेज करते हो बार बार, ठीक है, ओवर राइटिंग करते हो, अवॉइड दैट प्लीज़, ओके। वर्ड लिमिट, स्टिक टू इट, आपको एग्ज़ाम में हमेशा होता है ये कि वहीं से इंस्ट्रक्शंस, राइट इन अबाउट 200 to 250 वर्ड्स, ऐसा कुछ, तो उसी में ही आप लिखेंगे, विद इन वर्ड लिमिट ही रहेंगे। अब कुछ स्पेशल टिप्स, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। तो सबसे पहले आप ये काम करोगे, जो भी टॉपिक है उसके बारे में मेक श्योर दैट यू शुड हैव इनफ इंफॉर्मेशन, फाइन। उसके बाद आपको लॉजिकल ऑर्डर में, यानी एक सीमित कोहेरेशन होना चाहिए, इसके बाद ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, एक आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनना चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, और कोहेरेंस का मतलब ही है कि रिलेशंस होने चाहिए, एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस जो भी आप लिखोगे दैट शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर, या एक ऑर्डर में आपको लिखना है कि इसके बाद तो यही सेंटेंस आना चाहिए, ओके। थैंक यू।